A very warm good afternoon to all of you. I express my gratitude to respected CMD Sir, Shri Sanjeev Agrawal, ED Ma'am, Ms. Sakshi Agrawal, and RHM Ma'am, Mrs. Bhavna Srivastav, and all the dignitaries for giving me the opportunity to moderate Sage Talk in such a big platform. Now, I would like to welcome our guest, Mr. Aviraj Ashok, who is a motivational influencer an entrepreneur by profession and working as a consultant in the field of IT and real estate. His today's topic is Growing Stronger Together. And now, sir, it's my immense pleasure to begin your session with your valuable words. All right. I'm audible? Am I audible, Shweta? Yes, sir. Yes, sir. All right. Great. So first of all, I would like to thank you and the Sage Group for providing this opportunity to have a communication with you, with you all. I guess we are all teachers, faculties in this communication. Yes, sir. Yes, we all are faculty here. So yes. Great. So anyways, the topic that we chose and we discussed beforehand also was, getting stronger together. Now, first of all, what is togetherness? I just want to know from you guys. Let it be an interactive session, right? Togetherness. What is togetherness? Getting stronger together. How, we can get stronger together? This is one thing which I want to know. Getting stronger together. What are the three ingredients of being together? अच्छा, अपन सबने संस्कृत में वो पढ़ा अहम आवाम व्यम, right? Am I audible? Hello? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Great. So, अपन सबने पढ़ा हुआ है अहम आवाम व्यम, सबने पढ़ा हुआ संस्कृत में? तो yes, अहम का मतलब क्या होता है? What is अहम? मैं. और जब तक ये अहम हमारी लाइफ में है, तब तक we cannot be together, right? So how are we going to remove this ahem from our life? हम अपने मैं से, अपने पर्सनल लाइफ से, अपने प्रोफेशनल करियर से, अपने प्रोफेशनल लाइफस्टाइल से, अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल से मैं का एक बहुत बड़ा रोल है मैं. और इस लॉकडाउन में तो मैंने देखा है कि एक नया शब्द कॉइन हो गया है. वो शब्द मैं से रिलेटेड भी है और सिर्फ मैं से रिलेटेड है. देखिए, जब तक मैं है तब तक वी आर ओके विथ इट. Till it is I personally on a personal level I'm okay with it. But when it comes सिर्फ मैं, then there is a problem. अब वो सिर्फ मैं को हम कैसे हटाएं? Because if we want to get stronger together, we have to remove सिर्फ मैं तो अहम को भी हटाने की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद ही पूरी तरह से नहीं कर पाता, तो I cannot expect you guys to do it. I've been taking motivation sessions for different categories, for students, for associates, employees, team building sessions in different part of the country and also abroad in few companies. But still, वो मैं वाला फंडा मेरे को 100% खत्म होते हुए नहीं दिखता. I'll tell you a very short story जो हम सबके लाइफ में, हम सबके जीवन में होता है, right? हम सबके लाइफ में एक कोई ना कोई पर्सनल लाइफ में, एक प्रोफेशनल लाइफ में कोई ना कोई एक रीजन, एक असर्शन, एक एंटिटी जरूर होती है which we feel is hindering our growth, which we hold responsible के because of this particular person, particular reason, entity, I am not able to grow. Do we have all those entities in our life? Do we all have those entities? Please give me a thumbs up if we have. Do we have that entity in our life? Please raise your hand if you feel like yes, because of some one person, my growth in a personal aspect or in a professional aspect is not happening. Do we have that? Okay. So, एक बहुत छोटा सा example है. Let's face it the way I want to take it. Okay. आप सब ऑफिस आते हो अपने, और ऑफिस में नोटिस बोर्ड पे एक चीज लिखी हुई होती है, एक मैसेज रहता है, कंडोलेंस मैसेज. तो कंडोलेंस मैसेज वो क्या रहता है? देयर वाज अ कंडोलेंस मैसेज, द पर्सन हु वाज हिंडरिंग योर ग्रोथ,
the person who was complaining about you, the person responsible for making you suffer is dead. Kindly assemble in the cafeteria at 12 o'clock for condolence messages. At the very first instance, everybody was very, shocked. What has happened actually? Who was that person who was hindering our growth? Who was that person who, because of whom I was not able to grow in my professional career? So at that one moment, the very first moment, the feeling of shock came, right? हम सबके पास आएगा वो एक feeling of shock, क्या किसी और की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा था. The second moment, the second feeling was, चलो अच्छा हुआ, गया साला, बहुत बढ़िया, सबके पास आएगा. Let's be true to each other and let's be true to our own self, right? एक बहुत अभी रिसेंटली एक लाइन लिखी है, मतलब आई यूज्ड टू राइट आल्सो, कि अब आईने से बात करना छोड़ दी मैंने, अब आईने से बात करना छोड़ दी मैंने, कमबख्त ये भी सच से डरने लगा है. बहुत सिंपल सा फंडा है, हम सबसे झूठ बोल सकते हैं बट हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते. अब आईने से बात करना छोड़ दी मैंने, कमबख्त ये भी सच से डरने लगा है. तो लेट्स बी ट्रू, लेट्स बी वेरी ट्रू टू आवरसेल्फ. मेरे को कोई मतलब नहीं इफ वी आर नॉट ट्रू टू द कलीग, इफ वी आर नॉट ट्रू टू द कंपनी, इफ वी आर नॉट ट्रू टू द पेरेंट्स, इफ वी आर नॉट ट्रू टू आवर फैमिली, बट वी हैव टू बी ट्रू टू आवरसेल्फ. क्या आप अपने आप से झूठ बोल सकते हो? प्लीज गिव मी प्लीज रेज योर हैंड इफ वी कैनॉट लाई टू अस. प्लीज रेज योर हैंड. आई तो कैनॉट लाई टू अस. मुझे पता रहता है कि वेयर आई एम रॉन्ग. वी ऑल आर अवेयर कि यस वी हैव कमिटेड अ मिस्टेक. बहुत अजीब सी सिचुएशन है अपने लाइफ में, जब हम गलत होते हैं, जब हम गलत होते हैं तो हमें समझौता चाहिए रहता है, और जब हम सही होते हैं तो हमें न्याय चाहिए रहता है. कितनों के साथ हुआ ऐसा? जब हम गलत होते हैं तो हमें समझौता चाहिए, लेकिन जब हम सही होते हैं तो हमें न्याय चाहिए, हमारा अधिकार है. कितनों के साथ हुआ लाइफ में ऐसा? भैया, जो आज आपका अधिकार है वो कल किसी और का भी अधिकार था. तो जब आपको उस टाइम पे समझौते के लिए आपने हाथ उठाया था, तो आज आप समझौता करने के लिए तैयार रहिए. क्या हम सही होते हुए समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं? आर वी रेडी टू कॉम्प्रोमाइज when we are right? No, we are not ready. Even I am not ready. So how to tackle this kind of situation? The only thing which is needed in these kind of a situation is, don't be wrong to your own self. Don't lie to your own self. Be true to your own self. It is very important that we have to be true to our own self. तो जैसे ही आप लोगों को ये पता लगा, हम सबको ये पता लगा कि जो आदमी, the one person who was hindering our growth in the company, in the institute, in the group is dead. तो पहला तो शॉक था कि ऐसा कोई था एक आदमी. कौन था वो आदमी? Then there was a feeling of anxiety. Who was that person? कौन था वो लेडी? कौन था वो आदमी? कौन था? Then there was a person, चलो ठीक है, गया तो गया, it's better he is gone. Then there was a feeling of sadness. कि कुछ भी होता. ये 4 फीलिंग एसोसिएटेड है. पहला शॉक, एंजाइटी, हैप्पीनेस एंड सैडनेस. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि सिचुएशन एक ही है, सिनेरियो एक ही है, that someone died today. And in a single scenario, you are having 4 kind of feelings. Can you justify those 4 feelings? I think everybody can justify that 4 feelings. पहला शॉक कि अच्छा मेरी कोई बुराई करता था मैनेजमेंट में जाके. दूसरी खुशी, गया तो गया यार. फिर एंजाइटी, था कौन, पता तो करो.
ये पता तो करो वाली फीलिंग कितने लोगों के साथ आती है? प्लीज लेट मी नो, पता तो करो वाली फीलिंग कितने लोगों के, प्लीज रेज योर हैंड, गिव मी थम्स अप, और यू नो, ये पता तो करो, पता तो करें, कौन है? कितने लोगों के साथ ये फीलिंग आती है, पता तो करें? मेरे साथ तो आती है। क्लाइंट चला गया, क्यों चला गया, पता कर। अरे गया तो गया, पहले घर में अपने पता करो, अपने ऑफिस में पता करो क्या हुआ था, देन गिव अ कॉल टू क्लाइंट, राइट? लेकिन पता तो करो में वी ऑलवेज लैक पेशेंस. We always lack patience, and if we are lacking the patience, we are lacking the virtue. And if we are lacking the virtue, we cannot be together. Can we be together if we are lacking any kind of a virtue? Please let me know. Can we be together if we are lacking any virtue? We cannot be together. अरे मेरे बहुत सिंपल सा एक पॉइंट है, अगर हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज, किसी भी फीलिंग के लिए पेशेंस रख सकते हैं, तो हम एक डिसीजन मेकिंग कंडीशन में रहते हैं। और अगर हम किसी भी चीज के लिए पेशेंस नहीं रख सकते, तो हम डिसीजन मेकिंग कंडीशन में नहीं रहते। ये हम सबको पता है, लेकिन हम इसका अनुसरण नहीं करते। वी डोंट फॉलो दिस। The question arises here, why we don't follow this? That is the main question, which we will try to find the answer in this another 40, 45 minutes, 30 minutes, which we have got. Right? So, ये चार हमारे पास feelings आई। पहला शॉकिंग, दूसरा खुश हो रहे थे, तीसरा एंजाइटी, चौथा दुखी हुए कि यार कोई अपना कलीग है चला गया। जब आप लोग कैफेटेरिया में पहुंचे, हम सब जब कैफेटेरिया में पहुंचे, तो वहां पे कॉफिन रखा हुआ था। कॉफिन में बट ऑब्वियसली कॉफिन का ढक्कन आप लोगों की मुंह की तरफ था, तो आप लोग देख नहीं पा रहे थे उसमें कौन था। तो मैनेजमेंट ने आप लोगों से एक बात बोला कि आप लोग आइए, पे योर ट्रिब्यूट टू द पर्सन एंड प्लीज मूव आउट ऑफ द कैफेटेरिया फ्रॉम द अदर गेट, so that nobody can discuss. When you guys started, जब आप आए तो उसमें किसका चेहरा था, कौन था? प्लीज बताइए। Who was there? Please raise your hand if you feel like there was someone. Please raise your hand if you feel like there was someone. Please. I cannot see. Yes. So you feel there was someone. Be very true to yourself, please. We are wasting each and every breath that we are taking. Trust me on this. जो एक सांस हमने ले ली, वो सांस अब हम दोबारा नहीं ले सकते। ये एक बहुत हार्ड फैक्ट है लाइफ का, जो हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे। हम लोग ये रियलाइज क्यों नहीं कर रहे, ये मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। बट एक ही चीज समझ में आई, वी आर वेस्टिंग ईच एंड एवरी ब्रेथ दैट वी आर टेकिंग। Try to gain out of that wasted breath. Try to gain something out of that wasted breath. Then only that breath will not be wasted. So इस सेशन में हम लोग आपस में खुश रहें, आपस में संतुष्ट रहें, आपस में अपने आप से ट्रू रहें। कितने लोगों को लगता है कि वहां पे कोई, नाम बताने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन कितने लोगों को लगता है कि ये एक पर्टिकुलर आदमी है, हो सकता है ये मेरा ग्रोथ रोक रहा हो और ये वहां पे हो। मेरी वफा के तो कॉल कई दे गए। आप एक बहुत छोटा सा 2 लाइन है कि मेरी वफा के कॉल तो कोई कई दे गए। मेरी वफा के कॉल तो कई दे गए, और मजा तो तब आया कि 2-4 मुझे ही दे गए। मतलब this is the situation we are living in, and we have to accept the fact, right? This is the situation we are living in कि मेरी वफा के कॉल तो कई दे गए, और मजा तो तब आया कि 2-4 मुझे ही दे गए। कि अविराज से ही आके सामने वाला बोल रहा, रुक मैं तेरी अविराज से शिकायत करता हूं। हाँ भाई ठीक है, आओ बैठो। अविराज को मालूम नहीं अविराज कौन है, खुद को मालूम नहीं कि मैं खुद कौन हूं, खुद को यह पता नहीं कि पेशेंस मैंने कब नहीं रखा, ऐसा जो मेरे साथ हुआ वो क्यों हुआ।
किस लिए हुआ, बट मैं शिकायत करके आऊंगा। तो कितने लोगों को लग रहा है, कितने लोगों को लग रहा है कि कोई ना कोई वहां पे होगा अंदर? प्लीज रेज योर हैंड। एक आध दो। चलिए, उसमें मिरर था, उस कॉफिन में मिरर था। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। देयर इज नो वन सो पावरफुल हु कैन स्टॉप योर ग्रोथ बट योर ओन सेल्फ। और ये हम समझ नहीं पाते। उस कॉफिन में मिरर था, और जब उस कॉफिन में मिरर था तो हम लोग सब कि मैं अपनी ग्रोथ रोक रहा हूं। इस प्लीज यहां पे मैं आप सबकी वॉइस चाहूंगा। एक चीज बताइए जो ढूंढने से भी नहीं मिलती। एक चीज जो ढूंढने से भी नहीं मिलती। कोई बता सकता है? शांति। शांति। और ठीक है, और शांति के बहुत तरीके जी। सेटिस्फेक्शन, और विल ट्राई टू फाइंड ऑल दोस थिंग्स। पहला हो गया शांति, दूसरा हो गया सेटिस्फेक्शन, क्योंकि टाइम अपने पास कम है। लेट्स हैव दिस एज फास्ट एज वी कैन। पहला हो गया शांति, जो ढूंढने से भी नहीं मिलती। टू एन एक्सटेंट ट्रू। आई लेट यू नो हाउ यू विल फाइंड शांति इफ यू वांट टू कनेक्ट। नहीं मिलता सर। हाँ जी, पीसफुल माइंड। ठीक है। और सर हम अपने आप से नहीं मिल सकते सर। अपने आप से नहीं मिल सकते। और सेल्फ कॉन्फिडेंस सर। कॉन्फिडेंस। और एक आध पॉइंट और, एक आध पॉइंट और मैं एक सेटिस्फेक्शन। मैं एक वर्ड में आप लोगों को ये सारी चीजें बता दूंगा कि ये सारी चीजें आसान है जो हम अपने आप से नहीं मिल सकते। बॉस, ट्राई टू टॉक टू योर सेल्फ। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर ओन सेल्फ। था आसान, हुआ वजूद मेरे मिलने का मुझे। जिसने ये जो फैकल्टी ने ये बोला था, सर ने, मैडम ने ये बोला था कि हम अपने आप से नहीं मिल सकते, उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि हुआ वजूद मेरे होने का मुझे। मिला वजूद मेरे होने का मुझे। था आसान, सिर्फ सांस लेना था। इट इज वेरी सिंपल, जस्ट हैव टू ब्रीथ। मिला वजूद मेरे होने का मुझे, था आसान, सिर्फ सांस लेना था। अब अपन एक चीज, वो चीज जो ढूंढने से नहीं मिलती और जिसके मिलने से हम सबको जो जो चाहिए वो सब हमें मिल जाएगा। सिर्फ एक चीज है, वो चीज है मेरी गलती। अगर वो एक चीज मेरे को, मेरी गलती मिल गई, तो मुझे शांति, सेटिस्फेक्शन, मेरे होने का वजूद, लाइफ में जो चाहिए। अपन लोग फैकल्टीज हैं, राइट? अपन अपने बच्चों से बोलते हैं, क्वेश्चन दिया हमने उनको कि ये 5 क्वेश्चन लिख के लाओ। अब वो क्वेश्चन लिख के लाया तो मेरी मौसी, मेरी जो सबसे छोटी वाली मौसी है, हम लोग उनको प्यार से घर में छोटी मौसी बुलाते हैं, तो मेरी छोटी मौसी मेरे को क्या बोलती थी, ये चीज मैंने उनसे कब 8वीं कक्षा में समझ ली थी, जब व्हेन आई वाज देयर इन 8th स्टैंडर्ड। उसके बाद तो मैं उनसे पढ़ाई नहीं, मारती बहुत थी और इधर उधर का गुस्सा भी मेरे पे ही निकालती थी, ऐसा मुझे लगता था, तो मैं उनसे पढ़ा नहीं। लेकिन उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी सिखा दी थी मुझे लाइफ में। वो मुझे क्वेश्चन लिख के देती थी, मैं उसका आंसर लिख के लाता था, और उसके बाद वो ये बोलती थी कि अपना आंसर खुद ही चेक करो, देखते तुम अपने आप को कितना नंबर देते हो। हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं ना कि अपना आंसर खुद चेक करो, वो परिपाटी खत्म हो गई है। हम सिलेबस में फंस गए। ट्रू, हम सब सिलेबस में फंस गए। हम सबके दिमाग में एक चीज है कि कितने जल्दी हम सिलेबस खत्म करें और ब्राउनी पॉइंट्स। देखिए, मेरे साथ भी है, सबके साथ है, एक्सेप्ट करने वाली बात है। वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फिनिशिंग आवर सिलेबस, isn't it true? But we are not realizing and making our student or ourselves realize where we are wrong. If we can accept our mistake,
we can correct it. There is no perseverance without acceptance. If we can accept, we can perceive. If we can perceive, we can walk. If we can walk, we can follow. If we can follow, we can reach. If we are ready to reach, we can see the destination. If we can see the destination, we can work accordingly. It is as simple as that. It starts with one thing, finding our own mistake. लेकिन वो जो अहम आवाम व्यम का अहम है, वो अहम इतना बड़ा है कि मैं तो भैया क्या बात कर रहे हो, मैं तो मतलब पेरेंटिंग पे सेशन ले रहा हूं, मैं अपने बच्चों के साथ गलत कर ही नहीं सकता। मैं मैरिड कपल के सेशंस ले रहा हूं, मैं अपनी वाइफ के साथ गलत कर ही नहीं सकता, वही गलत होगी। मैं सेशन लेता हूं, अपने सेशंस में बोलता हूं कि प्लीज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने माँ बाप के साथ करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छे से पेश आओ। मैं अपने माँ बाप के साथ गलत पेश आ ही नहीं सकता। बट दिस इज नॉट द सिचुएशन ऑलवेज। मैं कभी ना कभी अपने बच्ची के साथ, भाई इंसान ही हूं, कभी ना कभी अपने बच्ची के साथ और मेरे बेटे के साथ हो सकता है आगे चल के मैं कुछ गलत कर दूं। कभी ना कभी मैं अपनी वाइफ के साथ हो सकता है कुछ गलत व्यवहार करता हूं। कभी ना कभी मैं अपने पेरेंट्स के साथ हो सकता है, मेरे अपने रीजंस होंगे, जस्टिफिकेशंस होंगे, लेकिन गलत गलत है, वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो सकता। बहुत क्लियर सिचुएशन है कि अभी मैं अपने पेरेंट्स को कोविड की सिचुएशन में बाहर जाने नहीं दे रहा। मेरी मॉम इज अ टोटल सोशल फ्रीक एंड शी इज अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गई है घर में बैठ रहते रहते, लेकिन उसके बाद भी मैं उनको बाहर जाने नहीं दे रहा। कभी कभी मेरे को हार्श होना पड़ता है, मेरे वो रीजंस हैं कि आई वांट टू प्रोटेक्ट हर, बट उसमें बोलने का तरीका है। मैं कब तक बोलने के तरीके को पेशेंस से रख सकता हूं, दिस इज अप टू मी, दिस इज आई हैव टू परसीव, राइट? दिस इज व्हाट हैज टू बी परसीव्ड, दिस इज व्हाट एक्सेप्टेंस विल ब्रिंग, this is all knowing my mistake and accepting my mistake will only lead me to the betterment towards life. But we all are not ready to accept our mistake, right? Why? किसी को कोई रीजन है? किसी को अपनी गलती मिलती है? प्लीज, अगर किसी को अपनी गलती मिलती है, पहली चीज तो प्लीज वो वॉइस रेस करे कि यस सर मुझे मिलती है। और अगर किसी को अपनी गलती एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती तो वो वॉइस रेस करे कि यस सर आई कैन एक्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ मिलियंस। मैन तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, अपन सबके लिए। एक आध वॉइस, एक आध हैंड, एक आध रेस, एक आध भी। I can, sir. Boss, trust me, you are the bravest person on this Mother Earth. If you can accept your mistake, you can rectify it. If you can rectify it, you can walk. If you can walk, you can see the target. बहुत सिंपल है। अब ये एक्सेप्टेंस का सिस्टम कहां से आता है? हाउ दिस एक्सेप्टेंस सिस्टम्स वर्क्स इन, हाउ दिस एक्सेप्टेंस सिस्टम वर्क्स, वो कौन से 5 वर्च्यू हैं, कौन से 5 क्वालिटीज हैं, 10 हो 15 हो, कौन सी क्वालिटीज हैं जो हमें एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी है? व्हाट आर दोस क्वालिटीज? एनीवन? 5 qualities, 1 qualities, 2 qualities, anyone who is having some qualities, these are the qualities which are ready, mandatory for acceptance. Anyone? Yeah, I'm waiting. Anyone? Any 1 or 2, 3 virtues, qualities which you feel like? Sir, giving respect to सामने वाले को रिस्पेक्ट देना ज्यादा ठीक है, थिंकिंग दैट his thinking is better than me or his point of view is better than me. This we should understand. I got your point. Point of view तो कोई किसी का गलत नहीं होता. This is what I feel. हमेशा there 3 point of view होते हैं. एक पर्टिकुलर सिचुएशन के 3 point of view होते हैं. I'll tell you the point of view example also very fast. पहला पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू. मैं वो एक बहुत छोटे से एग्जांपल से आपको समझा देता हूं. मेरे डैड ने मेरे को ये बोला, ये मैं हर बार बोलता हूं.
एक एग्जाम्पल के लिए अपन ये बात कर रहे हैं कि मेरे डैड ने ये बोला कि ये पर्टिकुलर लेटर है, ये लेटर लेके आप शमशाबाद जाइए। तो मैंने मेरे डैड से बोला कि शमशाबाद का मुझे रास्ता बता दीजिए। तो डैड ने बोला हेड नॉर्थ ईस्ट एंड यू विल फाइंड शमशाबाद। द ओनली विलेज which will come after Bhopal in the direction of northeast will be Shamshabad. I said okay, fair enough. I started walking and dad in between dad said कि भैया सुनो एक मैप बना लेना। मैंने ठीक है मैं मैप बना लेता हूँ। तो मैं चलना चालू किया, मैंने लिखा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 200 कदम चलने पे मुझे एक कुआं मिला, फिर 200 कदम चलने पे मेरे को एक मंदिर मिला, फिर 200 कदम चलने पे मेरे को जंगल मिला और जंगल को मैंने 500 गज में पार करके शमशाबाद मिला। मैं मैप लेके वापस आ गया, वो मैप मैंने अपने डैड को दे दिया। एक 15 साल बाद वो मैप मेरे डैड ने मेरे छोटे भाई को दिया और बोला कि स्टार्ट, दिस इज द मैप विच योर ब्रदर यू नो मेड, और प्लीज आप शमशाबाद को लेके आओ, जाओ। तो 200 गज चलने पे कुआं मिला, तो कुएं की जगह हो गया था हैंडपंप वहां पे। फिर 200 गज चलने के बाद मंदिर मिला, तो मंदिर की जगह वहां धर्मशाला बन गई थी। फिर 200 गज चलने पे जंगल मिला, तो जंगल की जगह वहां कॉलोनी कट गई थी। फिर 200 कॉलोनी को क्रॉस करके शमशाबाद मिला। ही केम बैक तमतमाता हुआ कि ये क्या मैप आप लोगों ने दिया है, ये तो सब गलत मैप था। मैं परेशान हो गया, ये मैप को अगर देखता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। तो क्या मेरा मैप गलत था? प्लीज टेल मी। बिल्कुल नहीं। क्या मेरा भाई गलत बोल No, रहा sir. था? No, बिल्कुल no. No, sir. मेरा भाई भी गलत नहीं बोल रहा था। क्या मेरे डैड ने मेरे ऊपर भरोसा गलत किया? No, sir. No, no, sir. क्या मेरे डैड को अब मेरे भाई के ऊपर भरोसा होगा? अब अगर मेरे भाई के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो क्या वो भाई के ऊपर भरोसा ना करना सही है कि गलत है? So always for a particular situation there are 3 point of views. One is yours, one is mine, and the other is the right one. And the right one is relevant to time. And the relevancy of time is very important for a belief system, and that belief system is very important for getting stronger together. अब ये belief system कहां से आ जाता है? How does the belief system in a group, in an association, in a company, in school, colleges, a group of person working together, how does the belief system works in the generating the aura of success? I will never say, मैं कभी ये नहीं बोलता कि एक अकेले आदमी का सक्सेस रेट होता है, बिल्कुल नहीं होता। उस आदमी का ऑरा होता है। हम लोग कितनी बार बोलते हैं कि नेगेटिव आदमी से दूर रहो? कितनी बार बोलते हैं? Many times, sir. अपन लोग जाते हैं किसी के पास, अपने कलीग होता है, पर्सनल लाइफ में होते हैं, रिश्तेदारी में होते हैं, रिश्तों में होते हैं। देखो मैं हमेशा ये बोलता हूं, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते थे तो उसने माँ बना दी। हमेशा ये मानता हूं, माँ बाप भगवान से समकक्ष मानना चाहिए अपन लोगों को। और शैतान हर जगह नहीं हो सकता था तो उसने रिश्तेदार बना दिया। ये हमेशा बोलता हूं मैं, और मैं मानता भी हूं। हम लोगों के लाइफ में कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं यार उस आदमी से बात मत करो यार, मूड ऑफ हो जाता है। कितनी बार होता है? या आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, पूरा ऑफ ट्रैक हो जाता है डिस्कशन। सबकी लाइफ में है कि एक की लाइफ में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसको देख के मूड ऑफ हो जाता है? सबकी लाइफ में है, एक आध तो होगा। बिल्कुल। Yes, sir. ऐसा क्यों होता है? किसी ने ये सोचा ऐसा क्यों होता है? किसी ने भी ये सोचा कि ऐसा एक आदमी हमारी लाइफ में क्यों होता है? हैव एनीबॉडी थॉट ऑफ इट? वो हमारी लाइफ में सिर्फ इसलिए होता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम उसके बिलीफ सिस्टम से डिफरेंट है। हमारी मेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे बिलीफ सिस्टम की अच्छा ये तो सब अब मतलब साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि आवर बॉडी इज अ रिसीवर एंड अ ट्रांसमीटर। ये सबको मालूम है, एवरीबॉडी इज एक्सेप्टेड इट।
Everyone has accepted it कि our body is a receiver and a transmitter of frequencies. Science has also proven it. अच्छा, एक चीज बताइए, इस पर्टिकुलर सेशन में कितने लोग हैं जो सिर्फ इसलिए आए हैं कि ये सेशन शेड्यूल्ड हुआ है, और कितने लोग हैं जो इसलिए ये बिलीफ सिस्टम से आए थे कि कुछ सीखने को मिलेगा? कितने लोग हैं ये सीखने बिलीफ सिस्टम से आए थे कि ठीक है यार, मैं बैठती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ, कॉपी चेक करती रहती हूँ, कोई इशू नहीं है, करता हूँ अपना लैपटॉप पे वर्किंग कर लेता हूँ, और जो बोल रहे हैं वो तो बोल ही रहा है, सुनना है, 5 और सुने थे, ये एक और सुनना है. नाउ हियर कम्स द बिलीफ सिस्टम. अब जो लोग ऐसा कर रहे होंगे, मेरे को तो 4 ही लोग दिख रहे हैं मेरे स्क्रीन के सामने, और 4 लोग ठीक हैं, बढ़िया हैं, मेरे को सुन रहे हैं. मैं मोबाइल से, मेरा लैपटॉप एक्चुअली क्या सर्वर अपडेट पे चल रहा है, तो मैं लैपटॉप से ये ले नहीं सकता था. तो मोबाइल में तो मेरे को 4 स्क्रीन दिख रही हैं, चारों स्क्रीन सही हैं. अब बिलीफ सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं, तो ये बिलीफ सिस्टम में कितने लोग इस बिलीफ से आए हैं कि यार मैनेजमेंट ने ये टॉक शेड्यूल करी है, वी हैव टू अटेंड इट, नो वरीज, व्हाट्स द बिग डील इन दैट, I'll do my working which needs to be submitted, और मैं सेशन मेरा चलता रहेगा. अब वो आप लोग फैकल्टीज हैं, तो हो सकता है कॉपी चेक करना हो, अटेंडेंस बनाना हो, रिपोर्ट्स बनाना हो, आप लोग वो कर रहे हो, या ये हो सकता है कि ठीक है यार, हो गया कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं. या एक बिलीफ सिस्टम ये हो सकता है कि यार ग्रोइंग टुगेदर, इंटरेस्टिंग टॉपिक, चलो कुछ नया करने को मिलेगा इसमें. क्या नया करने को मिलेगा, कैसे नया करने को मिलेगा, देखते हैं. कितने लोगों का बिलीफ सिस्टम इस पर्टिकुलर रेंज में था? कोई भी नई चीज करते हैं तो वो नई चीज करने में हमें ये कितना समझ में आता है कि हाँ चलो कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ देखने को मिलेगा. there is an incident, मैं भी वो अनुसरण करने की कोशिश करूंगा अपने कंपनी में, अपनी वर्किंग में, कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी, XYZ कोई भी कंपनी थी. उस बड़ी कंपनी में जो भी एम्प्लॉय को जॉब ऑफर होती थी, तो फाइनल राउंड उसके ओनर के साथ होता था. और वो जो फाइनल राउंड ओनर होता था, इट वाज के साथ जो होता था, ओनर के साथ जो होता था, इट वाज नॉट एन इंटरव्यू. व्हाट इज यूज्ड टू बी वाज अ लंच. और उस लंच के ड्यूरेशन में that particular owner used to decide whether the offer letter has to be given to the particular person or not. वो कैसे डिसाइड करता होगा? किसी को कोई आइडिया? कैसे डिसाइड करता होगा? कोई आइडिया किसी को? How that owner must, just simply taking lunch, nothing else. Owner, HR ने जो ऑफर लेटर ओनर को दिया, द ओनर विल कॉल दैट पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ लंच, एंड आफ्टर लंच द ओनर विल डिसाइड वेदर आई हैव टू हायर दिस पर्सन और नॉट. कैसे? व्हाट ही यूज्ड टू जज, क्या जज करता होगा? किसी को कोई बेसिक आइडिया? सर, टेबल मैनर्स. चलिए, टेबल मैनर्स मतलब जिसने ये बोला है उसके लिए जीवन में मैनर्स इज समथिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच अ पर्सन, वो सामने वाले में मैनर ही जज करता होगा. बट मैनर्स के साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैनर्स के साथ साथ हमें ये भी नोटिस करना है कि आर दैट मैनर्स फेक और दे आर बिकॉज कि आई एम द एम्प्लॉय एंड ही इज द ओनर, कि ये मेरा जूनियर है इसलिए मैनर दिखा रहा है. मैनर्स आर इंपॉर्टेंट, but the intentions of manners are as important as manners. चलिए, मैनर हो गया. दूसरा, सर पहले सामने वाले को ऑफर करना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो हमसे. एनीबडी, कोई दूसरे, कोई गैस, वाइल्ड गैस? Or we can say etiquettes. Sir, how presentable the person is? Speak up. बात Any wild guesses from anyone? How presentable the person is?
how he is presenting himself on that particular day? Sir, you are Sir not is not audible. here. Sir is not here. Okay, maybe some network issue must be there. Kuch He will problem. join. He will join again then shortly. Are we connected? Hello. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So आप लोगों ने लास्ट क्या सुना था? अपन कहां तक कनेक्टेड थे? Etiquette Sir, आया था। yes. हाँ. ओके, मैनर्स की बात हो रही थी, राइट? सर ओनर जो लंच के लिए बुला हाँ, राइट. तो फिर अपन वो क्या चेक करते होंगे? Dressing sense, sir. Dressing sense is also equally important. equally important. इक्वली इम्पोर्टेंट. Yes. On Okay. that very So- important day. राइट. ये मैं शुरू से बोलता हूं कि आप ड्रेसिंग स्टाइल पे शुरू से बोलता हूं विद रिस्पेक्ट टू गर्ल्स ऑल्सो एंड विद रिस्पेक्ट टू बॉयज ऑल्सो कि क्या कुर्ते पजामे पहन के आप डिस्को में जा सकते हैं या साड़ी पहन के आप डिस्को में जा सकते हो क्या? No. तो आजकल के कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, एक मैनर है, एक ड्रेसिंग मैनर है. तो कुर्ते पजामे पहन के जब हम डिस्को में या साड़ी पहन के जब हम डिस्को में नहीं जा सकते तो जीन्स पहन के हम मंदिरों में कैसे जा रहे हैं? ये किसी भी रिलीजियस जगह पे हम जीन्स पहन के कैसे जा रहे हैं? हर जगह का एक अपना एटिकेट है, एक अपना मैनर है, एक अपना ड्रेसिंग एथिक है, वो फॉलो होना चाहिए. इसके अलावा वो और ऑनर क्या देखता होगा? सर वाइल्ड गेस वे ऑफ ईटिंग है, उसने थाली कैसे क्या क्या मतलब पूरा एक साथ ले लिया है, द वे ही इज टेकिंग. अपन लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग एक बहुत ज्यादा प्रेशर में है विद पुटिंग आवर बेस्ट इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट को लेके. राइट? होना भी चाहिए, गलत नहीं है. कहीं ना कहीं आप लोग खुद सोचिए, 3 पॉइंट आए हैं और तीनों एक ही चीज पे आए हैं, वो है मैनर, एटिकेट, द वे यू ड्रेस, द वे यू बिहेव. इसके अलावा आप लोगों के दिमाग में एक चीज और आ रही है. मैं ये आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि Confidence. यार सर अपने एम्प्लॉय रहेगी उसकी. सर अपने एम्प्लॉय के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करना चाहते हो, उनसे जान पहचान बनाना चाहते हो. ये एक लेटर स्टेज में आता है मैम. अभी तो ऑफर भी नहीं दिया है. अभी तो मैं ये चेक कर रहा हूं मैं उसको ऑफर दूं कि नहीं दूं, क्योंकि अभी आप देखिए, मैनर हो, एटिकेट हो, बेस्ट भी. अगर आप फर्स्ट टाइम किसी ओनर के साथ लंच पे जा रहे हो, जबकि उसने बुलाया और आपको ये मालूम है कि ये लंच आइदर मेक इट और ब्रेक इट है मेरी जॉब के लिए, तो यू विल गिव योर बेस्ट. यू विल बी प्रॉपरली बिहेव्ड, you will be properly dressed, you will be in your best behavior. और ये बात उस ओनर को भी मालूम है, राइट? वो एक चीज क्या हो सकती है? Any guesses? One last guess because I guess we are up of time. One last guess. Knowledge. What knowledge that person. नॉलेज तो होगी ही, तभी तो वो टेक्निकल राउंड और HR राउंड सब करके आया है. The only thing how I eat depends on what I eat and what item I pick. No, through communication is fake or a real. एक मीटिंग में कोई नहीं बता सकता whether this is a fake communication or not. So body language. So whether he is paying the bill or not. नहीं, when it is with the owner, तो owner ही bill pay करेगा. Why will he ask that person to pay the bill? It is on the company, on the house. But it was a wild guess. Yeah, true. देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं कि हर इंसान की यही कहानी कि तेरा सुख भारी और मेरा दुख भारी.
आज तक मुझे एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जो ये बोले कि मैं तुझसे ज्यादा सुखी हूं, या जो ये बोले कि तू मुझसे ज्यादा दुखी है। हर आदमी को अपना दुख बहुत बड़ा लगता है और हर आदमी को अपना सुख बहुत छोटा लगता है। तो हर इंसान की यही कहानी, तेरा सुख भारी और मेरा दुख भारी। तो वो तो छोड़ दीजिए, मेरा भी वही कंडीशन है। मैं मतलब कोई ऊपर से टपका फरिश्ता नहीं हूं, मेरी भी स्थिति वही है। मैं उस चीज को रियलाइज कर चुका हूं और अब मैं चेंज करने की कोशिश अपने आप को कर रहा हूं। आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ नोइंग माई सेल्फ। दैट इज अ जर्नी ऑफ लाइफ फॉर मी, एटलीस्ट नाउ। What the owner used to observe in that particular lunch is whether the person is having a predetermined mind or not. Take it for granted है या नहीं है. If he takes the meal for granted, whether he takes the chef for granted, whether he takes the ambience of the restaurant or the place for granted, अब ये वो कैसे पता करेगा, प्लीज बताइए। Any wild guess? Sir, he will Any wild guess? talk to the waiters and all. No. He will talk to the What waiters. he used to observe is, हाँ जी, वो कुछ फूड में इस तरह का कुछ कम रख पाएगा that whether he is actually उसको आंसर कर रहा है कि नहीं। You are very close. आप जब खाना खा, अपन सबकी आदत है, आप जब खाना खाने बैठते हैं, अपन घर में भी ये करते हैं कि तो सबसे पहले नमक अलग से लेते हैं। सबसे पहले थाली में नमक अलग से लेते हैं, बिना खाने का डिश टेस्ट किए कि नमक ठीक है कि नहीं है। वी हैव टेकन फॉर ग्रांटेड कि मेरी माँ ने, मेरी वाइफ ने नमक कम ही डाला होगा। हम सबसे पहले नमक लेते हैं अपनी थाली में, राइट? हम एटमॉस्फेयर को छोड़ के, एनवायरनमेंट को छोड़ के सूट बूट लंच में जा रहे हैं, फॉर्मल लंच में जा रहे हैं, सूट बूट सब पहन के पहुंचते हैं। और जब ये सब पहन के पहुंचते हैं तो हमें अंदर जाके समझ में आता है कि ठंड है कि गर्मी है। एंड वी आर नॉट कंफर्टेबल जस्ट टू प्लीज समवन एल्स। वी आर नॉट कंफर्टेबल। वी हैव टेकन दैट शेफ फॉर ग्रांटेड कि उसने खाने में नमक कम ही डाला होगा। तो एवरीवन in our situation, in our life, every owner, every person, every individual is on a particular, according to me, we have taken him or her for granted. We have taken the situation for granted कि बॉस कॉल आया है तो आज तो बत्ती पड़नी ही है। हम एंजाइटी में आ जाते हैं, यार मेरे को क्यों बुला लिया सीएमडी सर ने या मैनेजर ने या बीपी ने, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग। कितने लोगों के दिमाग में ये आता है कि भाई सीएमडी सर ने बुलाया है या मैनेजर सर ने बुलाया है या चेयरमैन सर ने बुलाया है, या क्यों बुलाया है। वी हैव टेकन, हम एक ए एंड टी में आ गए हैं और वो ए एंड टी जो है वो है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट। सबके लिए, सबके रिस्पेक्ट में, हर सिचुएशन के रिस्पेक्ट में वी हैव टेकन द एंड फॉर ग्रांटेड। And why we have taken an end for granted? Because we ourselves have taken for granted. We have taken us for granted. और हमें हमारी गलती दिखना बंद हो गई है। वो गलती हमें दिखना तभी चालू होगी जब हम, Shweta ma'am, can we continue because the time is up? You guys have other schedule. I still have 10-15 minutes with me. For 10 Hello? minutes at least. Let me ask host also. Lavanya ma'am, can we continue? Lavanya ma'am, am I audible? Actually, there is another session lined up. We have to over it. Yes. So we'll over on time then. Okay, ma'am. What I'm trying to say is try to analyze what we are doing wrong, accept it and persevere it. Only then we are able to move forward in life together. एक 5-6 point है. First point is the belief system, and when that belief system comes in our life, with everyone working on a single belief, miracle happens. That is what I have guessed it.
and I've experienced it. So thank you for this opportunity, guys, and let me know the feedback of it. Shweta ma'am, can I have the feedback after the session? Yes, sir. Yes, sir. Sure, sir. I'll send you. All Sir. right. All right. Anything now else I if you feel- guys want to ask? Sir, now I feel honored to facilitate you as a guest and token of respect from our school e-certificate by our HM ma'am, Mrs. Bhavna Srivastava. Thank you. You are welcome, sir. And thank you, sir, for your great words and motivating Thank you. us. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Okay. Thank you. Take care. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. All right. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you so sir. much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Hope बोर नहीं हुए आप लोग. So thank you, sir. Okay. Thank you. Okay.